Good morning, children. Now let's continue our English literature with the description of chapter 8 of your English literature book, that is Demosthenes. Actually, Demosthenes is a success story of a man with a speech problem who became one of the greatest orators in Athens in Greece. Now let's start the story. How he became successful and what are the problems that he faced. If at first you do not succeed, try again. एक बार हार जाओ तो दुखी मत हो, उदास मत हो, निराश मत हो, दोबारा कोशिश करो. This piece of advice has helped many people achieve their dreams. However difficult they might have appeared, Demosthenes was born with a severe speech problems. ये एक जो मंत्र है कि try again, इसने बहुत लोगों को सक्सेसफुल बनाया है, चाहे उनकी राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आई हों. ऐसे ही एक इंसान था डेमोस्थेनेस, जिसको कि एक बहुत सीवियर स्पीच प्रॉब्लम थी. ही यूज्ड टू स्टैमर, यानी कि हकलाता था वो. But it did not discourage him. He practiced hard and became one of the greatest orators of his time. मगर वो अपनी इस कमी से उसने हार नहीं मानी, निराश नहीं हुआ और कोशिश करके, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके और वो उस समय का बहुत बड़ा ओरेटर बना. ओरेटर वो लोग होते हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीच देते हैं पब्लिक में, खड़े होकर के मोटिवेशनल स्पीच लाइव देते हैं, उनको हम ओरेटर्स कहते हैं. As a boy, Demosthenes was shy and delicate. बहुत शर्मीला था. बहुत नाजुक दिल का था. When he made his first public speech, his voice was weak and his words were not clear. He stammered. He could hear people laugh and jeer at him. He tried to press on, but had to stop his speech and leave. जब पहली बार डेमोस्थेनेस ने अपनी स्पीच दी थी पब्लिक में, तो उसकी आवाज़ बहुत वीक थी, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वर्ड्स भी उसके क्लियर नहीं थे, वो हकला भी रहा था, जिससे कि लोगों ने उसका मजाक बनाया और उसके ऊपर भद्दे कमेंट करे. उसने कोशिश करी अपने आप को चालू रखने की, अपनी स्पीच को चालू रखने की, मगर लोगों की बदतमीजी के कारण, बैड कमेंट्स के कारण उसको अपनी स्पीच छोड़ के जाना पड़ा. Demosthenes could not bear the thought that people found his speech strange and funny. He knew he needed to do something about it. So began a journey which made him one of the greatest Athenian orators. Demosthenes चाह रहा था कि उसकी कमियों के कारण लोग उसको नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको अजीब समझते हैं, मगर उसने सोचा कि उसने हिम्मत नहीं हारी और ये डिसाइड करा कि मैं इस सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करूंगा. और इस तरीके से ये दृढ़ निश्चय करने के बाद एथेनियन ओरेटर की एक बहुत ग्रेट जर्नी शुरू हुई. एथेनियन यानी कि वो लोग जो ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में रहते हैं. Demosthenes' father was a wealthy sword maker in Athens. He had died when his son was 7 years old. Although his father left him a fortune, Demosthenes' guardians were not careful with his money. They lost some of it and spent some on themselves. In the end, they did not have enough money to give him a good education. Demosthenes was angry with his guardians. Was there a way he could make them feel sorry? He may not have known then that it was learning to speak that would help him. Athens then had some great orators. Demosthenes had often heard his teachers talk about them and he longed to listen to their public speeches. Now what happens? Demosthenes was the son of a wealthy sword maker. बहुत अमीर तलवार बनाने वाले का बेटा था. Who died when his son was barely 7 years old. वो तभी उसकी डेथ हो गई थी जब वो 7 साल का ही था. The guardians wasted the money meant for the boy's education. और जो उसके गार्जियंस थे उन्होंने सारा पैसा जो है
वेस्ट कर दिया था, जो कि उसके लिए डेमोस्थेनेस के फादर छोड़ गए थे। डेमोस्थेनेस वाज एंग्री विद देम फॉर चीटिंग हिम एंड वांटेड टू फाइंड अ वे टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, बट हाउ? उसको तब ये नहीं पता था कि वो अपने बोलने की शक्ति को ताकत बना करके अपने साथ हुए इनजस्टिस से फाइट कर सकता था। उस टाइम में एथेंस में बहुत ग्रेट ओरेटर्स हुआ करते थे, जो वहाँ लोगों को स्पीच दिया करते थे। डेमोस्थेनेस की जो टीचर्स थी वो उसके बारे में उनके बारे में उसे बताती रहती थी, और वो चाहता था कि वो भी इन लोगों की स्पीच सुने। One day, not long after that, he heard that Callistratus, an orator who everyone admired, was to speak at a great trial that was taking place in the city. और एक दिन उसे पता लगा कि एक बहुत ग्रेट ओरेटर कैलिस्ट्रेटस जो है आ रहे हैं, और वो ग्रेट ट्रायल यानी कि कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसको ग्रेट ट्रायल कहते हैं, उसमें वो स्पीच देने वाले हैं। Demosthenes heard people talk about Callistus and begged his tutor to allow him to be in the courtroom when he spoke. The tutor agreed and even arranged a seat from where Demosthenes could see and hear all that went on. Demosthenes ने अपने टीचर से बहुत प्रे करी, बहुत उनसे सिफारिश करी कि मेरे को भी उनका स्पीच सुननी है। तो इस तरीके से टीचर ने उसकी रिक्वेस्ट को सुन करके उसके लिए एक सीट अरेंज कर दी कोर्ट रूम में, जहां पे कि डेमोस्थेनेस उनकी स्पीच को आराम से सुन सकता था। The speech was full of power and purpose. The speech was very motivational. When Callistratus has finished, then Athenians crowded round him and many even followed him home. Demosthenes was impressed and inspired. And after the speech, Callistratus' speech was such a big hit, then many people followed him to his home. And Demosthenes was also very much inspired and motivated. He said to himself, I too will be an orator and make people think about what I am saying. I want to have the power of words to make people agree with me and believe me. In his heart he also thought, maybe this special talent will also help me fight against the injustice my guardians had done to me. Now, after listening to Demosthenes and seeing the impact, after listening to this Callistratus and seeing the impact of Callistratus on people, he also thought to become a famous orator. He said he thought that might be this is possible because of being an orator. He could fight the injustice done to him. उसने सोचा कि शायद अगर मैं बहुत बड़ा ओरेटर बन जाऊं, लोग मेरे बारे में सुने, मेरे ख्याल सुने, मेरे साथ हुए अन्याय को सुने, तो हो सकता है मेरे को जो मेरे साथ अन्याय मेरे गार्जियंस ने करा है उसके लिए मुझे न्याय मिल जाए। Demosthenes knew that he must work hard to succeed. For the next 2 years he read history, wrote speeches and listened to famous orators. When he was 18, he believed he was ready to speak in public. He decided to fight against his guardians in a court of law. At first no one took him seriously, but Demosthenes pleaded his case again and again. In the end he won and his guardians were ordered by the court to return his money to him. But it was too late. There was very little money left to recover. Demosthenes knew that he had to work very hard to succeed to fight the injustice, because स्टैमर करता था, हकलाता था, तो वो कैसे इतनी स्ट्रांग स्पीच दे पाता कि लोग उसको सुनते, उस पर ध्यान देते और उसको कंसीडर करते। तो व्हाट ही डिड ना, ही फॉर द नेक्स्ट 2 years ही रेड हिस्ट्री, उसने बहुत पढ़ाई करी, स्पीचेस लिखी, फेमस ओरेटर्स को सुना। फिर जब वो 18 years का हुआ तो उसने सोचा नाउ आई एम रेडी टू स्पीक इन पब्लिक। फिर उसने जो है केस करा अपने गार्जियंस के खिलाफ कोर्ट में। पहली बार तो किसी ने उसको सीरियसली ही नहीं लिया, मगर फिर क्योंकि ही हैज वेरी टू मच विल पावर, उसने बार बार प्लीड करा, जिसकी वजह से फाइनली वो केस तो जीत गया अपने गार्जियंस के खिलाफ, मगर तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और गार्जियंस मोस्टली उसका सारा पैसा खर्च कर चुके थे।
Once more, Demosthenes felt great sadness and anger, but he would not give up and went up on to speak in the assembly of Athens. फिर जब केस जीत गया, जब देखा पैसा नहीं मिला उसको, तो उसको फिर से बहुत ही निराशा हुई, बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने असेंबली में, एथेंस की असेंबली में जाके बोलने का निर्णय लिया। असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे लोग मिलते हैं, सभा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सभा जहाँ पे लोग मिलते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। But his first address was a failure. He knew it from the faces of the people around him and was filled with shame. But when he spoke in the assembly, it was a complete failure because he used to stammer and his speech was also not powerful. So nobody was interested in listening to him. This is surely the last time I speak in public, he thought sadly. He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going. Suddenly he felt someone touch his arm. It was an old man who had heard him speak in the assembly. He had seen how sad and disappointed Demosthenes was. He looked at him keenly and praised him. डेमोस्थेनेस जब बिल्कुल उदास हो गया और जान गया कि अब वो नहीं बोल पाएगा कभी असेंबली में, कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वहां से निराश होकर चल दिया। मगर तभी रास्ते में उसको एक ओल्ड मैन मिला जिसने कि उसको सहारा दिया, उसको कंसोल करा, जो कि उसको देख रहा था, वो जान रहा था कि ओल्ड मैन वाज नोइंग दैट ही वाज अ ग्रेट पर्सन फ्रॉम इनसाइड. Only there is a drawback that he cannot speak properly. He told him that his speech reminded him of the great orator Pericles. How can you give up so easily, Demosthenes? ओल्ड मैन ने डेमोस्थेनेस से कहा कि तुम जो हो मुझको पेरिकल्स की याद दिला रहे, जो कि एक ग्रेट ओरेटर था एथेंस का, और तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते. Demosthenes felt encouraged and tried again, but he failed a second time. This time he left the assembly, hiding his face in his cloak. तो उसकी यही बातों से हिम्मत ले करके डेमोस्थेनेस ने फिर से कोशिश करी, मगर इस बार भी बुरी तरीके से वो फेल हुआ. लोगों ने खूब उसकी भर्त्सना की, यानी कि उसके ऊपर कमेंट्स करे, उसको टॉन्ट्स करे, उसके ऊपर हंसे हुए, जिसकी वजह से शर्म से वो अपने कोट में अपना मुंह छुपा करके भागा. An actor named Satyrus, who knew him well, followed him. He knew that Demosthenes would be in despair. वहां जब असेंबली में से वो शर्मसार होकर के भागा, तब एक एक्टर सटाइरस ने उसको फॉलो करा और वो जानता था कि हाँ डेमोस्थेनेस जो है इस वक्त बहुत ही निराश होगा. Demosthenes did not hide his feelings from Satyrus. A sailor with a foolish story will make them applaud, while if I tell them tales of the glorious deeds of their own countrymen, they do not care, he said bitterly. तब जब सटाइरस ने उसको कंसोल करने की कोशिश करी, तो डेमोस्थेनेस ने कहा कि किसी नाविक की बेकार की स्टोरीज, उसकी इस सेल की जर्नी की, उसकी शिप की जर्नी की, वॉयज की स्टोरीज तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं, अपलॉड करते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं, ताली बजाते हैं. पर अगर मैं उनको जो हूँ अपने ही देशवासियों की वीर कथाओं के बारे में सुनाता हूँ, तो वो लोग जो हैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. ट्रू, डेमोस्थेनेस answered Satyrus, but I will tell you why it is so. If you will recite to me some lines from one of our great poets. तो सटाइरस ने उसको समझाया कि तुम्हारी कहना सही है, एकदम ऐसा ही होता है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ. तुम कुछ लाइन्स बोलो एक पोएट की. Then Demosthenes recited some poems to him. He spoke the word correctly, but his voice was dull. उसने वर्ड्स तो सारे सही बोले, मगर उसकी आवाज में कोई दम नहीं था. There was awkwardness in the way he delivered the speech. बहुत अजीब सी, मतलब खालीपन सा, बिल्कुल डल स्पीच लग रही थी जिस तरीके से उसने बोला. When Demosthenes finished, Satyrus repeated the lines back to him. अब जब डेमोस्थेनेस वो पोएम बोल चुका था, सटाइरस ने वही पोएम दोबारा से खुद भी बोली. डेमोस्थेनेस स्टूड स्टिल विद सरप्राइज, और उसके बोलने का तरीका देख करके डेमोस्थेनेस हैरान रह गया.
He could not believe that they were the same lines. The actor's eyes flashed, his voice rose and fell, and his body swayed as he spoke. और डेमोस्थेनेस ने देखा कि वही लाइंस जब एक्टर सटायरस बोल रहा है तो उसकी आवाज में दम था, फीलिंग्स थी, उसकी बॉडी पोस्चर जो थे एक्सप्रेशन दे रहे थे, बॉडी का एक बॉडी का पार्ट जो है हिल रहा था वॉइस के साथ और उसको पावरफुल बना रहा था पोएम को. Demosthenes understood why his speeches did not interest the Athenians. अब उसको समझ में आ गया कि वो जो भी कुछ बोलता था वो ग्रीक वासियों को, एथेनियंस को क्यों पसंद नहीं आता था. He realized that he must not only read or recite them but also act them. From that day on, Demosthenes began टू वर्क इन अ डिफरेंट वे. और तब से डेमोस्थेनेस को जो आइडिया मिला, जो इंस्पिरेशन मिला, तब से उसने अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया. He converted one of the cellars of his house into a study. उसने क्या करा, जमीन के नीचे जो कमरे होते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं, गोदाम की तरह जो होते हैं, अंडरग्राउंड रूम्स को उसने अपने घर के एक अंडरग्राउंड रूम को स्टडी में बदल लिया. There he practiced undisturbed. और वहां वो अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करने लगा. He often lived in his study for 2 or 3 months at a stretch. They say he went to the seashore and shouted his speech with pebbles in his mouth. और वहां लगातार 2-3 महीने तक कमरे में ही बंद रहता था. कभी कभी सुनने में आया कि वो समुद्र के किनारे जाता था और मुंह में पत्थर भर लेता था, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भर लेता था और फिर बोलने की कोशिश करता था. इससे क्या होता था, इट मेड हिम स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट एवरी साउंड. अब मुंह में पत्थर भरे होंगे तो बोलने में ताकत लगानी पड़ेगी. इसकी वजह से उसकी आवाज दमदार होने लगी धीरे धीरे. सो व्हेन ही स्पोक विदाउट द स्टोन्स द वर्ड केम थ्रू लाउड एंड क्लियर. तो ये आज जब उसकी आदत पड़ गई दम जोर से बोलने की, तो जब वो बिना पत्थरों के मुंह में बोला तब उसकी आवाज एकदम साफ, दमदार और जोर से निकली. ही वॉच्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एज ही स्पोक टू इम्प्रूव हिज एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड एक्शंस. और खुद को शीशे में देख करके बोलता था ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स यानी मूवमेंट ऑफ हैंड्स और अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सके. He practiced speaking as he walked or ran along the seashore. He raised his voice so that he could be heard over the roaring waves. और वो दौड़ते दौड़ते समुद्र के किनारे, वो बीच पे दौड़ते दौड़ते या चलते चलते बोलने की प्रैक्टिस करता था ताकि वो अपनी सांस को, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सके. हाई ब्रीदिंग में भी वो बोल सके और इतना तेज बोलता था कि समुद्र की लहरों के ऊपर से भी, किशोर के आगे भी उसकी आवाज सुनाई पड़ती थी. He also practiced speaking as he ran up a hill. All these trained his breath, voice and tone. और इस तरीके से पहाड़ियों पे दौड़ते हुए भी, सांस फूलते हुए भी बोलने की प्रैक्टिस करता था, जिससे कि उसको अपनी सांस पे कंट्रोल हो गया, उसकी आवाज तेज हो गई और उसकी टोन जो है यानी कि ताकत बोलने की जो थी वो सुधर गई. Demosthenes' speeches were now filled with drama and purpose. He was no longer the boy who was shy and spoke with a stammer. और इस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कर करके उसने अपनी सारी कमियों को ओवरकम कर लिया और एक बहुत ही ग्रेट ओरेटर, महान ओरेटर बना वो एथेंस का. So eventually he learned to speak eloquently with a purpose. He achieved his dream of becoming one of the greatest orator of his time. So इस तरीके से children, we can also achieve our dream by working hard and by keep on practicing and by keep on remaining inspired and should not regret the failure, but we should try again and again. In Hindi there is a saying ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान. अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो बेवकूफ़ भी इंटेलिजेंट हो जाता है. इसका मतलब हिंदी की इस कहावत का मतलब ये था. सो इफ यू विल प्रैक्टिस कंटिन्यूसली एंड यू विल नॉट गेट डिप्रेस और डू नॉट गेट लो विद द फेलियर, you can achieve your all aims of the life. Thank you. I hope you have understood the chapter properly.